اوکے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اف یو کین ہیئر می ایک تھمز اپ بھیج دو. آل رائٹ گریٹ. اچھا سوری فار دا ڈیلے ٹوڈے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو رہا تھا اینڈ انٹرنیٹ کے بھی ایشوز چل رہے ہیں، بٹ کوشش کریں گے آج زیادہ سے زیادہ ٹاپکس کور کریں. سو دیز آر دا ٹاپکس that we've discussed so far. یہ ہمارے 4 سیشنز ہو چکے ہیں. دس از دا 5th سیشن. ہم نے یہ سب کچھ کور کر لیا ہے کوائٹ ایکسٹینسولی. سو یو گائز اف دیر از اینی کویشچنز ابھی تک اس میں آپ پوچھ سکتے ہو بفور وی اسٹارٹ دا نیکسٹ ٹاپکس. اوکے ٹھیک ہے، موونگ آن. آج ہم نے لوپس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا ہے، اریز کرنے ہیں اینڈ اسٹرنگس. اف یو ہیو اینی کویشچنز تھرو آؤٹ آپ چیٹ میں میسج کر سکتے ہو. اچھا آلسو ایک اور چیز، جو ادھر CUI وا کیمپس سے ہے اس نے اینڈ پہ رکنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو لیڈ ہیں آئی تھنک عبید ان کا نام ہے، انہوں نے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. سو اف یو فرام CUI وا GDG تو پھر آپ نے سیشن کے اینڈ تک رکنا ہے. باقی لوگوں نے بھی رکنا ہے، ویسے ایوری بڈی شوڈ لسن، پورا لیکچر سن کے جانا. اوکے ہم نے کل یہ والا ڈائیگرام دیکھا تھا، اس میں ہم نے فور لوپس کیے تھے، وائل لوپس کیے تھے اینڈ ڈو وائل لوپس کیے تھے. اینڈ وی سیڈ کہ لوپس 2 قسم کے ہوتے ہیں، انٹری کنٹرولڈ اینڈ ایگزٹ کنٹرولڈ. اس میں وائل لوپ ہم نے کور کر لیے تھے پورے، ڈو وائل بھی کور کر لیے تھے. فور لوپ میں ہم نے کیا تھا، اسٹڈی کیا تھا، بٹ میں نے کہا تھا اس کے آگے ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے کالڈ نیسٹڈ فور لوپس، اور وہ آج ہم کور کریں گے. جسٹ اے کوئک ریکیپ کہ فور لوپس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یاد رکھنے کے لیے. سب سے پہلے ایک انیشلائزیشن ہوتی ہے، ہم انٹ I از اکول ٹو کوئی بھی ویلیو کر دیتے ہیں، پھر ہم کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں جو کہ چیک ہوگی، اینڈ دین ہم کوئی اپڈیشن کریں گے، کوئی انکریمنٹ I++ یا I-، اپڈیٹ کریں گے اس طرح سے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، بیچ میں سیمی کولن آتا ہے ہر اسٹیٹمنٹ کے درمیان. So finally, let's do nested for loops. Okay, nested for loops کا concept is quite important کیونکہ آگے جا کے آپ لوگوں کے بہت زیادہ یوز ہوگا. مے بی بیسک پروگرامنگ میں اتنا یوز نہ ہو at this level, but this concept needs to be clear to you. Okay, اس میں ایسے ہوتا ہے کہ nested for loop میں یہ ایک ہماری مین for loop ہوتی ہے، اس کو ہم outer loop کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہی ایک اور for loop ہوتی ہے جس کو ہم inner for loop کہتے ہیں. تو یہ اسی کے اندر نیسٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی لوپ ہے، جو آؤٹر لوپ ہے، جب یہ پہلا لوپ چلتا ہے نا، اس کے ہر راؤنڈ کے لیے دوسرا انر لوپ ایک پورا چکر لگاتا ہے. سو انٹ I از اکول ٹو 1 ہے. ابھی یہ جتنی دیر 1 رہے گا یہ فور لوپ چلتا جائے گا جب تک اس کی اپنی کنڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. لیٹ می ایکسپلین دس ٹو یو ود دا ہیلپ آف اے ٹیبل. پہلے لیکن اس کو دیکھ لو کہ آؤٹر لوپ میں ابھی 1 ہے، آؤٹر 1 ہے، پھر ہم انر لوپ میں چلے جاتے ہیں. انر لوپ جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوگی کہ 1 سے لے کے 3 تک انر لوپ چلتا جائے گا. سو 1 2 3، ایک دفعہ یہ کنڈیشن اس کی میٹ نہیں ہوگی، دس ایگزٹس، اور یہ واپس آؤٹر لوپ پہ چلا جاتا ہے. آؤٹر لوپ ایگزیکیوٹ ہوگی اب، اینڈ اس کے لیے دوبارہ یہ 3 دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگی انر لوپ. سو اس طرح سے ہوگا آؤٹر لوپ، پھر انر لوپ میں چلے جاتے ہیں، انر لوپ اپنی ایکسیکیوشن کمپلیٹ کرتی ہے، پھر واپس آؤٹر لوپ میں چلے جاتے ہیں، آؤٹر لوپ اپنی ایکسیکیوشن، پھر دین انر لوپ. لیٹ می شو یو دس ان این ایزیئر وے کیونکہ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے کانسیپٹ. سو دس از فار nested for loops to make a pattern. اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ نئے نئے سیکھ رہے ہو، اٹس بیسٹ کہ آپ ایک ٹیبل بنا لیا کرو جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی رن، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دا کوڈ از ایکچولی ورکنگ. سو اس میں ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں، ایک I ہے ہمارے پاس، ایک J ہے، اور ایک آؤٹ پٹ کا بنا لیتے ہیں. I جو ہے نا وہ آؤٹر لوپ کا ویریبل ہے اور J انر لوپ کا ویریبل ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ ہر دفعہ I اور J ہی یوز کرو، آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو، بٹ اس کا اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ ہم I اور J یوز کرتے ہیں ایز دا لیٹرز. سو ادھر سب سے پہلے اگر ہم آؤٹر لوپ میں جائیں، آؤٹر لوپ میں اٹ سیز فار انٹ I از اکول ٹو 1، مطلب اس وقت I کی ویلیو 1 ہے، اور پھر ہم کنڈیشن چیک کرتے ہیں. کنڈیشن میٹ ہو رہی ہے، I is less than or equal to 3. Yes, 1 is less than or equal to 3.
सो देन क्योंकि कंडीशन मीट होगी अब हम फॉर लूप के अंदर चल जाते हैं. फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप पड़ा हुआ है. अब इधर देखो int j is equal to 1. अब हम कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन मीट हो रही है. इज 1 लेस देन और इक्वल टू 3? यस इट इज. तो हम इसकी स्टेटमेंट में चले जाते हैं. इसकी स्टेटमेंट में आउटपुट क्या आ रही है? एक स्टार आ रहा है और इस वक्त j की वैल्यू भी 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये स्टार हमने लिख दिया. ठीक है. सो ये प्रिंट हो गया. अब हम वापस जाके अपडेट करते हैं j को. j अब 2 हो गया. अब हम इसी इनर लूप में ही रहेंगे. अभी हम वापस आउटर लूप में नहीं जाएंगे. j 2 हो गया. i अभी तक 1 ही रहेगा. वी आर नॉट गोइंग ओवर हियर जब तक हमारा इनर लूप पूरा नहीं चलता. सो j 2 हो गया. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3? यस इट इज. तो फिर हम दोबारा बॉडी में चले जाएंगे और इधर इसके साथ एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा. पहले सिर्फ एक स्टार था ना, हमने उसके साथ एक और स्टार भी ऐड कर दिया. सो वी हैव 2 स्टार्स एट द मोमेंट. अब हम वापस दोबारा जाते हैं. हमारा j अभी 2 था. अगेन वी इंक्रीमेंटेड. j 3 हो गया. अभी भी हम आउटर लूप में इस वाले लूप में वापस नहीं जा रहे. सो ये अभी तक 1 पर ही पॉज हुआ है. 1 पर ही है. ये 3 हो गया. अब हम कंडीशन चेक करते हैं. इज 3 लेस देन और इक्वल टू 3? यस इट इज. सो प्रिंट द स्टेटमेंट. तो हमारे पास एक और इधर एक तीसरा स्टार आ जाएगा. ठीक है. अब हम दोबारा इसको इंक्रीमेंट करते हैं. 3 अब 4 हो जाएगा. अब हम कंडीशन चेक करेंगे. 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3? नहीं. अब कंडीशन फॉल्स होगी. कंडीशन फॉल्स जब भी होती है इसका मतलब है हम ये पूरा फॉर लूप का ब्लॉक एग्जिट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएंगे जो कि एक न्यू लाइन स्टेटमेंट है. सो इधर अब एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी. सो ये अब अंदर वाली लूप एक दफा पूरा एग्जीक्यूट हो चुकी है. इट वेंट फ्रॉम 1 to 3. इसकी एग्जीक्यूशन एक दफा हो चुकी है. अब लेकिन हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ क्योंकि डोंट फॉरगेट ये जो पूरा काम हो रहा है ये एक्चुअली विद इन अ बिगर आउटर लूप चल रहा है. सो हमने आउटर लूप की भी आइटरेशंस कंप्लीट करनी है. सो हम वापस आउटर लूप में जाते हैं. i इज इक्वल टू 1 था. अब इसकी स्टेटमेंट सारी रन हो गई हैं. सो हम नेक्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट करते हैं. हम i को इंक्रीमेंट करके 2 कर लेंगे. नाउ i इज इक्वल टू 2. अब हम कंडीशन चेक करते हैं. इज 2 लेस देन और इक्वल टू 3? यस इट इज. सो वी गो इनटू द इनर लूप. अब हम इनर लूप में आ गए हैं. अब इनर लूप वही जैसे पहले चला था सब कुछ उसी तरह से चलेगा. j इज इक्वल टू 1. ये इनर लूप रीसेट हो जाती है. जब हम एक दफा आउटर लूप का चक्कर लगा के वापस इनर लूप में आते हैं वो रीसेट हो चुकी होती है. सो ये रीसेट हो गई है. ये दोबारा होगा 1 से लेके 3 तक जाएगा एंड हर दफा इधर एक स्टार प्रिंट होगा. सो बिल्कुल जैसे हमने पहले किया है. एंड जब हम इधर फाइनली आएंगे 4 पे और हम देखेंगे 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, तो फिर अगेन यही होगा कि ये पूरी फॉर लूप एग्जिट हो जाएगी. हम अगले स्टेटमेंट जाके एक्सिक्यूट करेंगे जो कि एक न्यू लाइन है और इधर एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी. इनर लूप की अब एक्सिक्यूशन खत्म हो गई है. सो वी कैन गो बैक टू आवर मेन आउटर लूप. जब तक ये आउटर लूप खत्म नहीं होगा हम इस प्रोग्राम को चलाते जाएंगे. अब देखो अब 2 था ना, पहले हमारा i 2 था. अब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे. i 3 हो गया. इज 3 लेस देन और इक्वल टू 3? यस इट इज. दैट मीन्स वी कैन गो इनटू द इनर लूप. इनर लूप में जाएंगे. दोबारा इनर लूप का वही सारा रीसेट होके चलेगा. 1 2 3 और इधर दोबारा जब एक दफा ये पूरा रन हो जाएगा दोबारा एग्जिट होके न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी. अब हम फाइनली एक और दफा जब इसको आइटरेट करेंगे सो इस वक्त ये जो i है ये 4 हो जाएगा. अब नोटिस करो जब हम 4 को इंक्रीमेंट करते हैं 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3. लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है एंड वी नो कि जब भी लूप की कंडीशन फॉल्स होती है आपने लूप से बाहर चले जाना होता है. सो हम लूप को जब एग्जिट करते हैं तो रिटर्न 0 आ जाता है. प्रोग्राम एंड हो जाता है. सो दिस इज आवर आउटपुट. हमें पहली रो में ये आया है, सेकेंड रो में ये आया है और थर्ड रो में ये आया है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो आउटर लूप होती है वो हमेशा रोज को कंट्रोल करती है और जो इनर लूप होती है वो हमेशा कॉलम्स को कंट्रोल करती है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अगर आप ये लॉजिक याद रख लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा यू आर गोइंग टू बी एबल टू सॉल्व इट. आउटर लूप का जो ये आई चल रहा होता है आई वो रोज को कंट्रोल कर रहा होता है. जो इनर लूप है जिसका जे होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा होता है. सो इधर हमारा जो फाइनल पैटर्न बन के आएगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. 3 rows and 3 columns.
और अगर आपने इसको रन ना भी किया होता पूरे को, आपको वैसे ही आउटपुट देखनी होती. You could have just looked over here कि इधर I is equal to 1 और 3 तक जा रहा है I. 1 से लेके 3 तक. और हमें पता है कि I represents rows, तो इसका मतलब है 3 rows होंगी. एंड फिर हम इधर आके ये भी देख सकते हैं कि J का हमें पता है J represents columns. और हमें ये भी नजर आ रहा है कि J भी 1 से 3 तक ही रन हो रहा है. So इसका मतलब है कि 3 columns होंगे. और अंदर आपको ये भी नजर आ रहा है कि प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार हो रहा है. सो यू कैन जस्ट मेक दिस पैटर्न. बट रियल लाइफ में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते. रियल लाइफ में इस तरह के पैटर्न्स आते हैं. इनफैक्ट ये मेरा एक मिड टर्म का क्वेश्चन भी था. वी हैड 30 मिनट्स और हमने ये वाला पैटर्न बना के देना था. सो इसका ऐसा होता है कि अगर मैं बैठूं और एक एक सॉल्व करके दूं, उस तरह से इट वुड टेक ऑल डे. You have to practice these on your own. This is one of those things कि आपको प्रैक्टिस से ही आता है. ठीक है, या आपको ड्राई रन करके हाथ से लिख के प्रैक्टिस करके उस तरह से आएगा, या यू जस्ट हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. देयर इज नो इजी वे आउट ऑफ दिस. ये पैटर्न्स आपको सीखने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक दफा समझ आ जाए ना कि लॉजिक क्या चल रही है, क्योंकि एंड पे यही लॉजिक है. आउटर लूप इज फॉर रोज, inner loop is for columns. एक दफा आपको ये समझ आ जाए, you can learn how to make all of these patterns. Okay, so I know that was a headache, but अब हम एक मजे के टॉपिक पे मूव ऑन करें, arrays. और मुझे आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया था कि arrays सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है. So इसके लिए we're going to be going into some detail. What are arrays exactly? And we're going to take this topic from zero to finish ताकि आप लोगों के concepts अच्छी तरह से build हो जाएं. अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए आप लोगों के. If you guys have any questions, आप लोग चैट में मैसेज कर सकते हो, मैं वो साथ साथ पढ़ रही होती हूँ. Okay, arrays. Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. Let's say अगर हमने student के marks देखने हो, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम int student 1 is equal to 89 करें, फिर हम दूसरे student के marks देखें, int student 2 is equal to 70, int students 3 is equal to 90 and so on. आप 10 students के marks ऐसे भी लिख सकते हो. या आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक array बना सकते हो. Array से ये हो जाएगा कि you can store all of the students marks in a single place. So 89, 70, 90 ये आप सारे एक ही दफ़ा लिख सकते हो. मतलब arrays are basically a data structure. So they're used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. This is just an overview. अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं. So, सबसे पहली चीज creating an array. अगर आपको याद हो, हमने सेशन 2 में variables की डिस्कशन की थी कि हमने कहा था कि जब आप int a लिखते हो, इस स्टेप को कहते हैं declaring a variable. और फिर मैंने कहा था जब आप int a को कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, like int a is equal to 5, this is called initialization. उसी तरह से जब आप array बनाते हो, array के भी आगे 2 steps होते हैं, declaration and initialization. Array declaration is the process of specifying the type, the name, and the size of the array. बिल्कुल जैसे हम variable करते वक्त पहले data type को declare करते थे और फिर variable का नाम. उसी तरह से इधर जब हम array की declaration करते हैं, हम पहले डाटा टाइप लिखते हैं कि int का array है, float का array है, किस चीज़ का array है, और फिर हम array का नाम लिखते हैं, whatever we want, and then उसके बाद square brackets में हम उसका size लिखते हैं. So this is actually how it's written. Like for example, int r5. int मतलब कि ये integers का array है, r इसका जो हमने नाम रखा है, और 5 इसका size है, इसकी capacity है, इसमें कितनी values आएंगी. So that's array declaration. जब हम एक array declare करते हैं, उसी वक्त memory में क्या होता है कि जितना भी हमने array का size दिया होता है, उतनी उसके लिए memory allocate हो जाती है. तो इधर हमने array का size 5 दिया हुआ है, so memory में 5 जगह खाली हो जाती हैं इस array के लिए, allocate हो जाती हैं. उसके बाद जब हम अगले step में array initialization करते हैं, initialization means to assign the value. So इसमें हम जो हमने array बनाया है, उसमें हम values डाल देते हैं 2, 4, 8, 12, 16. एंड अब क्या होता है, जो हमने मेमोरी में जगह बनाई हुई थी उनके अंदर ये वैल्यूज अलॉट हो जाती हैं. सो 2, 4, 8, 12, 16 अब जाके मेमोरी में स्टोर हो चुकी हैं. दैट इज array initialization. सो
या तो आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो कि आप पहले इंट, जैसे इधर हुआ है बेसिकली, इधर जैसे ये स्टेप 1 है, आप अरे को डिक्लेयर करो और फिर आप जाके उसमें कोई वैल्यूज डालो. डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप अलग अलग कर सकते हो. और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज कि आप एक ही लाइन पे भी कर सकते हो. और अगर आप एक ही लाइन पे कर रहे हो, यू डोंट हैव टू मेंशन द साइज ऑफ द अरे, यू कैन स्किप दैट पार्ट. सो इसमें ये देखो इंट आर स्क्वायर ब्रैकेट खाली है, इसमें हमने कोई साइज नहीं स्पेसिफाई किया क्योंकि हम एक ही लाइन पे डिक्लेयर भी कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं. दिस इज आल्सो अलाउड. आप ऐसे भी लिख सकते हो इंट आर 5 इज इक्वल टू 2 4 8 12 16. दैट्स अलाउड टू. ये दोनों केसेस करेक्ट होंगे. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन मेमोरी. ठीक है, सेम चीज़ वही हो रही है कि वैल्यूज जाके अलॉट हो रही हैं अपनी अपनी मेमोरी लोकेशंस पे. We can also partially initialize the array. Then the remaining elements will be assigned value 0. इस केस में जो elements रह जाएंगे, मतलब इधर हम सिर्फ 2 4 8 इनिशलाइज कर रहे हैं लेकिन हमने इसका साइज 5 लिखा हुआ है. So इस केस में जो elements रह जाएंगे उनको automatically by default 0 वैल्यू असाइन हो जाती है. So if you look here, इधर 2 4 8 तो हमने इनपुट दे दिया, इधर इनिशलाइज कर दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग जो elements रह गए हैं वो ऑटोमेटिकली 0 इनिशलाइज हो गए हैं. ऐसे भी हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू इनिशियलाइज एन अरे जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बस उसको बता दो कि मेरे साइज 5 है और आप उसको पहला एलिमेंट बता दो 0 डालना है, एंड देन वो ऑटोमेटिकली बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं उन सारों को 0 कर देगा. इन दिस वे विल गेट एन अरे विद ऑल एलिमेंट्स सेट टू 0. ओके, क्योंकि आई नो कि आप लोग जावा वाले बैकग्राउंड से आ रहे हो. जावा और सी कॉन्सेप्ट्स अरेज के सेम है सारे. कॉन्सेप्ट्स अरेज के ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में सेम ही होते हैं. थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क आता है कि इधर डिक्लेयर जब करते हो सी में, आई टोल्ड यू राइट द डाटा टाइप, द अरे नेम एंड द साइज. लेकिन जावा में ऐसे नहीं होता. जावा में आप डाटा टाइप लिखते हो, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हो एंड देन आप उसका नेम लिख देते हो. बट बात मतलब एक ही है, सिर्फ आगे पीछे थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है. इनिशियलाइजेशन में भी यही है कि इनिशियलाइजेशन में आई टोल्ड यू कि दिस इज अलाउड. You don't have to specify the size जब आप एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर रहे हो और आप उसी लाइन में इनिशियलाइज भी कर रहे हो. This is allowed कि आप इधर साइज ना स्पेसिफाई करो. और जावा में तो ऐसे होता है कि ब्रैकेट पहले आ जाती है. सो बहुत माइनर सी डिफरेंस है. इसमें से कंफ्यूज नहीं होना. अरेज के कॉन्सेप्ट्स सारे सेम ही होते हैं, जावा में भी सी में भी. Abdurrahman is asking, but better इसके हम space specify कर दें to prevent data loss. As such कोई मसला नहीं होता. You don't have to specify space क्योंकि आप आगे उसको ये भी बता रहे हो ना कि 1 2 3 वो जाके 1 2 3 डाल देगा मेमोरी में. So उसको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कितने साइज का बनाया है. You don't have to specify it. आपने सिर्फ साइज उस केस में स्पेसिफाई करना है जब आप अलग अलग पहले डिक्लेरेशन का स्टेप कर रहे हो, फिर आगे जाके प्रोग्राम में कहीं इनिशियलाइज कर रहे हो. If you're initializing and declaring on the same line, you don't have to specify कि size कितना है, उसमें कोई मसला नहीं होता. But वो आगे सारों को 0 से भी तो फिल कर रहा है. वो 0 से सिर्फ तब फिल कर रहा है जब हमने उसको साइज के मुताबिक पूरी वैल्यूज नहीं दी. So for example इधर 5 था, हमने साइज बताया हुआ था कंपाइलर को कि हम 5 भेजेंगे आइटम्स, 5 आइटम्स मेमोरी में संभाल लेना, लेकिन हमने उसको सिर्फ 3 भेजी हैं फिर. सो उसने वो 3 तो संभाल लिए, 2 4 8 उसने मेमोरी में एलोकेट कर दिए, लेकिन जो ये 2 जगह खाली रह गई हैं उसमें उसने खुद ही बाय डिफॉल्ट जीरोस डाल दिए. बट जिस केस में हमने 5 वैल्यूज पूरी दी हुई हैं, इट फिगर्स आउट कि अच्छा इसका साइज 5 है, वो सारों को 2 4 8 12 16 सारों को मेमोरी एलोकेट कर देता है. गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होगी. You're right, that's a really good question. लेकिन गार्बेज वैल्यू स्टोर नहीं होगी क्योंकि ये अरे का ही फीचर है कि जो उसने साइज एलोकेट किया होता है, जो उसमें खाली जगह चली जाती है, वो अरे खुद ही उसमें 0 डाल देता है. ये अरे मतलब खुद ही अपने तौर पे संभाल रहा होता है, इसमें गार्बेज वैल्यूज को नहीं आने देता. ओके, ये सिंटैक्स डिफरेंस सबको क्लियर है? कैन एवरीवन सेंड अ थम्स अप? इस पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. दिस इज अ वेरी माइनर सिंटैक्स डिफरेंस. ओके, ग्रेट. बाकी आप कॉन्सेप्ट्स किसी भी लैंग्वेज में समझ लो, देयर सेम थ्रू आउट. ओके,
ठीक है, सबको समझ आ गई, ठीक है, ग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू एक्सेसिंग अरे एलिमेंट्स. हम अरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं अगर हमें उसकी इंडेक्स का पता हो. Index means position. So arrays in C provides random access to its elements, meaning we can access any element of the array by providing the position of the element. ये word बहुत important है, random access. इसको हम अभी आगे जाके भी discuss करते हैं. So basically array की हर position का कोई ना कोई index होता है, उसका कोई ना कोई position होती है. So if this is an array of let's say 4, तो इसमें जो सबसे पहली इंडेक्स होगी, सबसे पहली जो लोकेशन होगी, सबसे पहली जो पोजीशन होगी वो 0 होगी. 1 2 3. मैंने बताया था ये साइज अरे का 4 है. सो जो सबसे पहली इंडेक्स होगी वो हमेशा 0 होती है. प्रोग्रामिंग में हम 0 से शुरू करते हैं, हम 1 से नहीं शुरू करते. सो इसमें जो सबसे पहली पोजीशन है, ये है तो सबसे पहली पोजीशन आइडियली 1 होनी चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में वी काउंट दिस एज इंडेक्स 0. और जो ये लास्ट इंडेक्स है, दिस इज ऑलवेज साइज -1. तो इस केस में मैंने कहा था साइज अरे का 4 है. 4 - 1 3. जो लास्ट इंडेक्स है वो 3 होगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होती है, लास्ट इंडेक्स हमेशा अरे के साइज -1 होता है. That's just how you access the elements of an array. इसका जो सिंटैक्स होता है, हम पहले अरे का नेम स्पेसिफाई करते हैं और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसके साथ ही हम इंडेक्स की वैल्यू डाल देते हैं कि हमने कौन से इंडेक्स पे वैल्यू एक्सेस करनी है. सो इट्स लाइक दिस. ये हमारे पास अरे है, इसमें इसका साइज 5 है और ये देखो जो इंडेक्स है फर्स्ट पोजीशन की वो 0 है और जो लास्ट पोजीशन है वो 4 है, साइज -1. इस इंडेक्स को हम इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं. सो इफ वी वांट टू एक्सेस द फर्स्ट एलिमेंट, हम 0 इंडेक्स लिखेंगे, अरे का नाम फॉलोड बाय द इंडेक्स वी वांट टू एक्सेस. 0 मींस फर्स्ट पोजीशन, तो 2 एक्सेस हो जाएगा. आपने ऐसे नहीं करना कि आप R2 लिखो, आपने इधर वैल्यू नहीं लिखनी होती, इधर हमेशा इंडेक्स लिखना होता है. इंडेक्स आप 0 लिखोगे, 0 मींस फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन ये है, इसमें 2 पड़ा हुआ है तो 2 प्रिंट होगा. That's how you access the elements of an array. Abdullah, yes, we can reverse the array members. लेकिन ये थोड़ा सा complicated concept है, ये definitely not for beginning programmers. ये आप लोग data structures and algorithms में पढ़ोगे. Array actually एक data structure है. Okay, I want you guys to try this. जो मैंने अभी explain किया है बिल्कुल वही concept है. इसका chat में आंसर करें सब. यस, बिलाल ने सबसे पहले जवाब दिया. यस 2010. ताशफा यस. यस सबने 2010. इसका आउटपुट होगा 2010. अच्छा, फॉर दोज ऑफ यू जिसने जवाब नहीं दिया, आई एम अज्यूमिंग इसका मतलब है कि आपको समझ नहीं आई क्योंकि चैट में जवाब नहीं दिया. तो सो इसमें बेसिकली ऐसा है कि हमने स्पेसिफाई कर दिया साइज 2 है, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है. अगर हमने array 1 R1, दैट मीन्स वी वांट टू एक्सेस इंडेक्स 1. इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 20. फिर अगले स्टेप में R0, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 10. So इधर 20 और 10 प्रिंट हो गया. Try this one. Guys, 28 लोग हैं, सब लोग जवाब दें. Super easy question. Yes, Altamash got it first. 8, 16, 12. Yes, ठीक है. इसमें हमने array को डिक्लेयर किया है, साइज 5 का array डिक्लेयर किया है. उसमें हमने वैल्यूज डाली हैं 2, 4, 8, 12, 16. इसके इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4. इंडेक्स जस्ट मीन्स पोजिशन. इंडेक्स का कोई कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मीन्स पोजिशन. जब हम R2 को एक्सेस करते हैं, दैट मीन्स कि इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 8. फिर हम प्रिंट करवाते हैं R4 को, 4 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 16. एंड देन फाइनली R0 जो कि फर्स्ट वैल्यू है
जो कि 2 है. So yes, you guys got it right. The answer is 8, 16, 2. Okay, अभी हमने जो बात की है ना, that was accessing array elements, कि हम किसी array को कि किसी एक element को कैसे access करके print करवाते हैं. But we can also update array elements. मतलब कि array की किसी element की हम value change भी कर सकते हैं, update भी कर सकते हैं. So that just means कि syntax वही रहेगा तकरीबन. Array name हम फिर index की value देंगे square brackets के अंदर और फिर हम assignment operator use करके new value डाल देंगे. So इधर if you look, हमने डिक्लेयर किया एक array of size 5 और उसको इनिशलाइज भी कर दिया. फिर हमने उसकी सबसे पहली वैल्यू प्रिंट करवाई है इंडेक्स 0 पे जो कि 2 है. और फिर हमने क्या किया है, हमने अपडेट किया है, अपडेट द array element. We gave the array name, we gave the index जो हमने अपडेट करनी है और उसकी न्यू वैल्यू थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेटर. सो अब इधर जाके 1 स्टोर हो जाएगा. सो अब जब हम प्रिंट करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, it will tell us 1 हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है. So syntax बहुत simple है. It is just like accessing array elements, लेकिन अब इसमें assignment operator use करते हैं. Okay, properties of array in C. Again, मैं बार बार कह रही हूँ ये properties same होती हैं in almost all the languages. तो इनको अच्छी तरह से समझ लो अभी. These are concepts that you need to build. सबसे पहले this should be crystal clear अब तक now. सबसे पहले index array की हमेशा 0 होती है, 1 नहीं होती. 0 index means first position. So इधर जो भी वैल्यू होगी सबसे पहली वैल्यू वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी. एंड जो भी हमारी लास्ट इंडेक्स होती है दैट्स ऑलवेज साइज -1. इधर array का साइज 10 है, 10 - 1 9. लास्ट इंडेक्स 9 है. So remember this, indexing of elements starts with 0 instead of 1. Moving on, fixed size of an array. So array में ऐसा होता है कि एक दफ़ा आप उसको डिक्लेयर कर दो, आप उसका साइज चेंज नहीं कर सकते. So इधर हमने एक दफ़ा जब array को डिक्लेयर कर दिया है कि इसका साइज 5 है और हमने इसमें 5 वैल्यूज भी डाल दी हैं. बाद में अगर हम प्रोग्राम में नीचे जाके बाद में कोशिश करें कि हम इसकी 6th वैल्यू एक्सेस करें तो हम नहीं कर सकते, इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि 6th वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती. हमने साइज ही 5 बनाया है. सो यू कैन नॉट मॉडिफाई लेटर ऑन इन द प्रोग्राम अपने अरे का साइज. एक दफ़ा आपने ऊपर सेट कर दिया, बस फिर आपने उसी के साथ गुजारा करना है पूरे प्रोग्राम के लिए. यू कैंट चेंज इट. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी के होमोजेनस कलेक्शन होती है. होमो मीन्स सेम ना. सो सेम एन अरे मीन्स कि जो एलिमेंट्स हैं अरे के वो सारे सेम डाटा टाइप के होते हैं. एंड अरे इन सी कैन नॉट हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स. सो अगर मैंने इंट टाइप का अरे डिक्लेयर किया हुआ है, इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस अरे में वो सारे इंटीजर ही होंगे. इफ आई ट्राई कि मैं अपडेट करूं इंडेक्स 2 को और मैं बजाय इंटीजर के मैं उधर एक स्ट्रिंग डाल दूं, GDG डाल दूं उधर. If I try assigning a string to an integer array, मुझे इधर भी एक warning आ जाएगी. Usually 0 print हो जाता है. So मैं इसको print करूँगी. This will print. इधर हमारे पास एक error आ जाएगा क्योंकि we're trying to print a string जबकि ये integer array है. इसका ये clear है सबको? Send a thumbs up. This is a foundational concept. ये आपको पता होना चाहिए. Array में same data type की चीजें होती हैं. Okay, great. Okay, let's talk about dimensions of arrays. So अभी तक जो भी हमने examples देखे हैं वो सारे single dimensional arrays थे, 1D arrays. But array की further types भी होती हैं. 2D arrays होते हैं, 3D arrays होते हैं. So this is an example just so you can visualize it. 2D array बनाने का मतलब है कि एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें रोज और कॉलम्स होंगे. और 3D array उसी टेबल की लेयर्स होती हैं, जैसे लाइक एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल टेबल्स. दैट्स 3D array. एंड ये बाद में लाइक इनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं. दिस इज यूज्ड इन लाइक मेडिकल इमेजिंग, क्योंकि मेडिकल इमेजिंग में अगर आप लोगों को पता है लाइक जो MRI आ रहा होता है, जो CT स्कैन आ रहा होता है, उन सारों की इमेजेस बहुत कम्प्लेक्स 3D होती हैं. देयर
मतलब वो एक वन डायमेंशन में नहीं होती, वो 3 डायमेंशनल होती हैं. तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं रिलेटेड टू दोज, उसके लिए हम 3D अरेज यूज करते हैं. और 2D अरेज और लाइक जैसे आप लोगों ने अगर देखी हो जो फाइनेंसिंग अकाउंटिंग की इतनी बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स होती हैं, वो ग्रिड्स होती है ना बेसिकली, उनके लिए हम 2D अरेज के साथ प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी. और 1D अरे जो हम अभी सिंपल सीख रहे हैं, जिसका हम आगे भी करेंगे, दीज आर जस्ट फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग टास्क्स. तो 2D अरे और 3D अरे आगे जाके करोगे, उनकी इतनी अभी इट्स बेसिक लेवल पे एप्लीकेशंस नहीं होती, बट दे आर इम्पोर्टेंट nonetheless. So the number of elements in a multidimensional array is the product of the size of all dimensions. Maliha is asking matrix के लिए भी second, yes, matrix के लिए भी 2D array ही use करते हैं. Even image processing में, क्योंकि image का भी pixels होते हैं ना image में, और pixels एक grid form बनाते हैं x और y, मतलब 2D होती है ना. सो उसके लिए भी जब भी हम इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सारी चीज़ें, इन सारों में 2D अरे का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है. बट लाइक आई सेड, अभी क्योंकि आप लोग बिगिनर लेवल पे हो, वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन 1D अरेज. अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, 1D अरे के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन 2D अरे के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए यू गोना हैव टू मल्टीप्लाई रोज इनटू कॉलम्स. सो ये 3 into 3, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है. और 3D अरे के टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आपको जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं होता, आपको उस तरह से तीनों डिमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो लेट्स लुक कि इनका कोड कैसा होता है. सो इसके लिए सबसे पहले चीज, यू गाइस नोटिस समथिंग, इधर नेस्टेड फॉर लूप्स यूज हो रहे हैं. हमने ये वाला तो डिस्कस कर लिया था, आई और जे वाला एग्जांपल, बट इवन अगर आप इधर देखो, इधर 3 नेस्टेड लूप्स हैं. सो लेट्स लुक इनटू दिस कोड कि इस कोड में क्या हो रहा है. इधर अगर आप देखो, सबसे पहले हमने एक 2D अरे क्रिएट किया. जब आप 2D अरे क्रिएट करते हो, सो यू यूज 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स. पहले तो हम सिर्फ 1D अरे में एक के साथ ही काम कर रहे थे ना, लाइक हम कर रहे थे int और 5 फॉर एग्जाम्पल. लेकिन जो आप 2D अरे बनाते हो, उसमें आपको 2 चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं. द फर्स्ट रिप्रेजेंट रोज एंड द सेकंड रिप्रेजेंट्स कॉलम्स. तो इधर देखो, 2 rows and 2 columns. ये हमें 2D अरे बनाते वक्त जब हम ये लिख देते हैं ना, तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अच्छा 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है 2D अरे बन रहा है. 3D अरे में सिमिलरली, इधर जो सबसे पहला 2 होता है, जो सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द लेयर्स, कि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स कितने होंगे. एंड देन आगे रोज एंड कॉलम्स. तो ये हमें बता रहा है 2 लेयर्स होंगे, आगे 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे. ये एक दफ़ा हम स्पेसिफाई कर देते हैं, कंपाइलर को पता चल जाता है कि हम 2D अरे बनाना चाह रहे हैं, 3D अरे बनाना चाह रहे हैं, जस्ट बेस्ड ऑफ ऑफ कि हम नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स कितनी डाल रहे हैं अरे के नाम के बाद. सो अगर हमने ये अरे प्रिंट करवाना हो 2D अरे, आई टोल्ड यू अब हम 2D अरे में रोज और कॉलम्स के साथ काम कर रहे होते हैं. और अभी हमने शुरू में भी देखा है कि रोज और कॉलम्स के लिए हम आई और जे को यूज करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं. आई टोल्ड यू आई हैंडल्स द रोज एंड जे हैंडल्स द कॉलम्स. तो उधर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और इस तरह से 2D अरे प्रिंट हो जाएगा. 3D अरे का देखो, इधर अब 3 फॉर लूप्स यूज हो रही हैं. द आउटर फॉर लूप हैंडल्स द नंबर ऑफ लेयर्स, द इनर फॉर लूप हैंडल्स द रोज, एंड जो उससे भी अंदर है वो कॉलम्स हैंडल करेगी. सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इसकी समझ आए कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कोड में, बट जस्ट टू गिव यू अ जनरल आइडिया कि 2D अरेज एंड 3D अरेज डू एग्जिस्ट और उनके क्या क्या यूजेस हैं. बट is anybody confused कि आउटपुट ऐसे क्यों आ रही है? ये तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है इस तरह से आउटपुट. Does anybody know why? If anybody wants to take a guess. Yes, सरदार 4D अरे भी होता है, और उसके भी आगे फिर एप्लीकेशंस होती हैं. तो इसकी आउटपुट स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रही है? क्योंकि हमने अभी तो देखा है कि अरे का तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है. सो हाउ इज इट कि इसकी जब हम आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल अरे होता है उसी तरह से प्रिंट हो रहा है? नहीं, ओके, दैट्स अ रियली गुड गेस, बट इट्स नॉट बिकॉज वी डोंट यूज दिस. इसका एक्चुअली एक और कॉन्सेप्ट है, बट दैट्स अ रियली गुड गेस. इट्स एक्चुअली क्योंकि ये जो हमने ग्राफिक स्ट्रक्चर विजुलाइज किया ना, वो सिर्फ एक हमने अपने आप के लिए विजुलाइज करने के लिए देखा है, बट एक्चुअली कंसेप्चुअली क्या होता है कि जो 2D और 3D अरेज होते हैं, वो सिर्फ
कंसेप्चुअली मल्टी डायमेंशनल होते हैं, नॉट इन रियल लाइफ, क्योंकि वो मेमोरी में फिर भी एक स्ट्रेट लाइन में ही स्टोर होते हैं. कंपाइलर उनको 2D और 3D बनाता है इंडेक्सिंग का सिस्टम यूज करके. सो मेमोरी में दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जैसे 1D अरे स्टोर होते हैं. और फिर कंपाइलर आगे जाके उनकी इंडेक्सेस को समझ के कंपाइलर सारा काम करता है, एंड कंपाइलर इज व्हाट मेक्स देम इनटू द 2D 3D अरे स्ट्रक्चर्स, और आगे उसी को यूज करता है. बट अरे जैसा भी हो, आपने याद रखना है कि चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो, 4D, जैसा भी हो, अरे के मेमोरी में हमेशा एक contiguous, or you can also say continuous memory allocation होती है. Let me explain what I mean in this point. So array का ऐसा होता है, contiguous means कि एक के बाद एक, कोई gap ना हो बीच में. Contiguous storage means कि अगर हमने, I'll just explain from here, अगर हमने एक इधर array बना दिया, array A को हमने साइज कर दिया 1 2 3 4 5, array का साइज 5 है, और हम जिसमें जो भी वैल्यूज डालेंगे, हमने इसमें 34 डाल दिया, 3 डाल दिया, 56, ये एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर होते जाएंगे. मतलब दे आर स्टोर्ड at contiguous or consecutive memory locations. इनके बीच में कोई भी gap नहीं आएगा. You have to remember this, कि array जैसा भी हो, it's going to be stored like this. It's called a linear data structure. array को इसलिए हम linear data structure कहते हैं क्योंकि इसकी जो memory allocation होती है, it's in this contiguous form. Consecutive memory locations allocate होती हैं. So you have to remember this, कि in memory, whether it's a 1D array, 2D, 3D, the memory allocation will be linear in contiguous blocks. अच्छा, जो मैंने linear data structures की बात की है, जो आप लोग data structures and algorithms जाके पढ़ोगे आगे वाले semesters में, सबसे पहला data structure discuss array ही होता है. Array is like the most simple data structure. तो आपके इस पे concepts अच्छे होने चाहिए. Array is a linear data structure, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी describe किया, contiguous storage. Does that make sense to everyone? एक thumbs up भेज दो if this part makes sense. Okay, let me ask you guys a question. अगर if this makes sense to everybody, अगर ये 100, let's say इसकी मैं memory location या memory address अगर लिखूं, let's say ये 100 पे store हुआ है 34, तो फिर 3 कौन से memory address पे store होगा? 3 का memory address क्या होगा? मैंने बताया जो first element है वो memory location 100 पे store हुआ है. Okay, so that's the beginner mistake जो सबने किया है. 101 नहीं होगा. 101 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे integers हैं. And we know कि integers 4 bytes के होते हैं. मतलब कि एक integer, हर एक integer इधर 4 bytes occupy कर रहा है. So इधर actually next element 104 पे store होगा. And then उसके बाद ये 108 and so on. You have to remember this. Integer type का array है, so that means हर integer 4 bytes occupy कर रहा है, तो इसके बाद जो next memory location होगी वो 104 होगी, not 101. Does that make sense? इस पे confuse नहीं होना. ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे से भी एक टीचर ने एक दफा पूछा था और मैंने भी 101 ही बोला था, and then he explained it to me, और तब से मुझे नहीं भूला. इसलिए आप लोगों ने भी याद रखना है integer 4 bytes का होता है, so it means the next memory location 104 होगी. Okay, just another way to understand कि हमने अभी क्या किया है. हम जब array को perceive करते हैं, हम उसको ऐसे perceive करते हैं, लेकिन जब random access memory में store हो रहा होता है, वो consecutive memory locations में इस तरह से store हो रहा होता है. And don't forget, these are all of the same data type. बीच में आपको कोई string नहीं नजर आ रही, कोई float नहीं नजर आ रहा, सारे एक ही type के हैं, सारे integers हैं. That's how it's stored in memory. So इसका जो आप की takeaway जो आपको बिल्कुल on your fingertips आना चाहिए, सबसे पहले array is a linear data structure, वो हमने समझ लिया है. क्यों? क्योंकि it stores a fixed size sequence of elements of the same data type in contiguous memory locations. Fixed size का भी हमने discuss कर लिया था, same data type का भी discuss कर लिया था, and contiguous memory locations का भी discuss कर लिया था. Each element can be accessed directly using its index. ये भी हमने किया था, which allows for efficient retrieval and modification. This is like the core concept of arrays. ये एक पूरी line जो है, ये आप अच्छी तरह से समझ लो और आपको arrays बिल्कुल perfect आ जाएंगे.
Okay, there's something called array traversal. अभी तक जो हम सारा काम कर रहे थे ना, वो हम अभी जो हमने फॉर एग्जांपल जो ये किया था, ये कोड जो मैंने दिखाया था पहले, ये वही एग्जैक्ट कोड है. इसमें हम रैंडम एक्सेस कर रहे थे. मतलब जो हमारा दिल कर रहा था हम इधर इंडेक्स 2 पे उठा लें, तो हमने इंडेक्स 2 पे जो पड़ा हुआ था 8 हमने उसको उठा लिया, फिर 4 पे इंडेक्स पे, फिर 0 इंडेक्स पे. हम कोई सीक्वेंस में नहीं चल रहे थे, जस्ट रैंडम एक्सेस. एंड मैंने आपको ये भी बताया कि रैंडम एक्सेस इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ अरेज, कि आप इसमें रैंडम एक्सेस कर सकते हो. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिधर हमें रैंडम एक्सेस नहीं करना होता, हमने इन अ सीक्वेंस चलना होता है. मतलब हम चाहते हैं कि हम पहले 2 को विजिट करें, फिर 4 को, फिर 8, 12, 16 in a proper sequence. So that's what traversal means. Traversal का मतलब होता है कि array के हर element पर एक एक करके गुजरना होता है हमने, शुरू से लेके आखिर तक. यानी array के सारे elements को sequence में access करना होता है. So if you look at this, array traversal is the process in which we visit every element of the array in a specific order. So आपने कंफ्यूज नहीं होना, array में हम random access कर सकते हैं, but we can also do array traversal. The random access thing is a feature जो बाकी data structures में बहुत कम होता है. Random access array का एक special feature है, लेकिन हम array traversal भी कर सकते हैं. So array traversal में ये देखो, we're visiting पहले हम index 0 पे, फिर index 1 पे, फिर index 2, index 3, index 4, we're visiting each element. और इसके लिए हम loops use करते हैं. वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम int r 0 एलिमेंट को प्रिंट करवाएं, फिर हम int r1 एलिमेंट को प्रिंट करवाएं, फिर हम int r2 एलिमेंट को प्रिंट करवाएं. लेकिन अगर आपके पास 100 साइज का अरे आ जाए या उस तरह का एक बहुत बड़ा अरे आ जाए, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता. और हमने कल भी डिस्कस किया था कि फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग हमने लूप्स यूज करनी होती हैं. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि हम इधर बैठे और लिखें एक एक को, वी जस्ट यूज अ लूप टू आइटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द अरे. अच्छा अदनान, बाय द वे ये कॉल एंड हो जाएगी 5 मिनट्स में, तो फिर आपने एक न्यू गूगल मीट लिंक शेयर करना है. गाइस व्हेन दिस कॉल एंड्स फिर सब लोग नए वाले लिंक पे आ जाना. ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया. Abdul Rahman is asking a question in the chat. Yes, the pair array, yes you're right, the pair array में 4 ऐड हो जाएगा. हाँ यस अलमा, ये नेसेसरी क्यों होता है इसका मैं आगे दिखाती हूँ. देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस जब हमने अरे को एक एक करके एक्सेस करना होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मार्क्स हैं, हमने स्टूडेंट 1, हमें पता है कि स्टूडेंट 1 के मार्क्स इंडेक्स 0 पे स्टोर्ड हैं, फिर हमें पता है कि स्टूडेंट 2 के मार्क्स इंडेक्स 1 पे स्टोर्ड हैं. उस तरह से अगर हमने सिक्वेंशली किसी चीज़ को एक्सेस करना होता है, तब वी नीड टू यूज अरे ट्रावर्सल. रैंडम वाला सही है काम, रैंडम में कोई मसला नहीं है, बट ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा यूसेज इज थ्रू array traversal using loops. अभी हम questions दिखाएंगे, so you'll understand what I'm saying. अदनान आप ये WhatsApp group में भी भेज देना please. Guys, if this link meeting ends, तो आपने WhatsApp group पे link से दोबारा join करना है. So array traversal using loops, इसमें क्या होता है, इसमें हमने वही for loop use करनी होती है. I told you for loops आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगी. अब एक दफ़ा for loops आप लोगों ने सीख लिया, it's going to come everywhere. Such an important concept. इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने एक अरे को डिक्लेयर कर दिया, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, उसमें हमने 5 वैल्यूज डाल दिए. अब अगर हमने इसको ऑर्डर में प्रिंट करवाना हो कि बिल्कुल ऐसे 2, 4, 8, 12, 16 प्रिंट हो, वी हैव टू यूज ए फॉर लूप. इसमें फॉर लूप में आई टोल्ड यू 3 स्टेप्स होते हैं. इनिशियलाइज करते हैं हम वैल्यू को, फिर हम कोई कंडीशन लगाते हैं और फिर हम अपडेट करते हैं. सो इधर भी हमने सबसे पहले काउंटर को आई को विच रिप्रेजेंट्स आवर इंडेक्स, हमने उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया. जब भी आप अरेज के साथ काम कर रहे होगे, यूजुअली यही होता है कि हम i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं काउंटिंग के वक्त, क्योंकि हमें पता है कि अरे की काउंटिंग 1 से शुरू नहीं होती, अरे की काउंटिंग 0 से शुरू होती है. सो हम इधर जो इंडेक्स यूज कर रहे हैं उसको भी हम 0 से ही इनिशियलाइज कर देते हैं. फिर आगे हम एक कंडीशन लगाते हैं. ये कंडीशन अरेज में हमेशा सेम रहती है कि i इज लेस देन द साइज. तो इस केस में साइज 5 है, सो i इज लेस देन 5. And then I plus हम अपडेट करते हैं. अब I is less than 5, इधर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ 0, 1, 2, 3, इधर 2 वैल्यू है, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 12 है और इधर 16 है.
we're saying I is less than 5. इसका मतलब है कि ये पहले इसको विजिट करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, इसको विजिट करेगा, इसको इंडेक्स 4 पे आके 4 इज लेस देन 5 अभी तक ट्रू है, इंडेक्स 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. लेकिन फिर जब इंडेक्स 5 पे अपडेट हो जाएगा 5 लेस देन 5 नॉट ट्रू, तो फिर ये लूप नहीं चलेगा. मतलब दिस विल रन जस्ट अप अंटिल द लास्ट इंडेक्स जो कि साइज -1 होती है. अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी I is less than or equal to 4, तब ये 4 इंडेक्स तक जाता कंडीशन. बट यूजुअली स्टैंडर्ड केस यही है कि we just do I is less than the size of the array. एंड जब भी हम ऐसे करें हम इसको हर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, इधर इंडेक्स जाएगी. सो सबसे पहले जब हम 0 से स्टार्ट करें I is equal to 0, दिस मीन्स ये ऐसे होगा R0. तो ये क्या प्रिंट करेगा 2, इधर 2 प्रिंट हो गया आके. फिर आइटरेट होगा R1 हो जाएगा और फिर इधर 4 प्रिंट हो जाएगा जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है. डोंट फॉरगेट दिस इज इंडेक्स नॉट वैल्यू. फिर R अपडेट होके 2 हो जाएगा. 2 पे हम तीसरी पोजीशन पे जाएंगे जहाँ 8 पड़ा हुआ है और उसी तरह से पूरा अरे प्रिंट हो जाएगा. सो यू ऑलवेज हैव टू यूज ए लूप व्हेनेवर यू वांट टू डू अरे ट्रैवर्सल. ओके गाइस, हम ऐसा करते हैं कि हम इधर 1 मिनट पॉज करते हैं और जो न्यू लिंक है सब लोग उस पर ज्वाइन कर लो क्योंकि मुझे बार बार वार्निंग्स आ रही हैं कि मीटिंग इज अबाउट टू एंड. आई एम एंडिंग द कॉल हियर. ठीक है, सब लोग न्यू मीट पे ज्वाइन कर लो. जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. Okay, can everyone hear me? Okay, great. ठीक है, बस 1 और मिनट वेट करें ताकि लोग वापस ज्वाइन कर लें.
اوکے سو جو ہم یہ والا ایگزامپل کر رہے تھے اس میں آئی ٹولڈ یو کہ ہم لوپ لگاتے ہیں ٹو ٹریورس تھرو آل دی ایلیمنٹس آف دی ارے. اب اسی طرح سے اگر ہم نے ارے کو ایلیمنٹس ریورس میں کروانا ہو, آئی تھنک ایکچولی کس نے پوچھا بھی تھا پہلے, لیکن اس کی ایک بہت سمپل امپلیمنٹیشن ہے, سو اٹس ویری ایزی فار یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ یو کین پرنٹ دی ارے ایلیمنٹس ان ریورس. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہم نے اوپر والی فور لوپ لگائی ہوئی ہے نا, دس از فار پرنٹنگ دی ارے ایلیمنٹس, جو کہ ہم نے کر دیا. اب اگر ہم نے ریورس میں کرنا ہو, اس میں ہم نے صرف تھوڑا سا انڈیکسنگ اور کنڈیشن کا سوچنا ہوتا ہے. سو اگر میں آئی آلویز ڈرا ڈائیگرام, کیونکہ مجھے ہمیشہ ویژولی چیزیں سمجھ آتی ہیں. سو ادھر اگر میں ڈائیگرام ڈرا کروں 0 1 2 3 4 اور اس میں جو ویلیوز اسٹورڈ ہیں, یہ ہمارا ارے ہے, ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم نے ریورس کرنا ہے, اس کا مطلب ہے وی وانٹ ٹو اسٹارٹ ہیئر ایٹ دا لاسٹ ویلیو اینڈ وی وانٹ ٹو میک آور وے آل دا وے ٹو دا فرسٹ ویلیو. سو اگر ہم نے لاسٹ ویلیو سے اسٹارٹ کرنا ہے, اس کا مطلب ہے جو کاؤنٹر ہے ہم نے اس کو بھی لاسٹ ویلیو سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ ہم انڈیکس 0 سے اسٹارٹ کریں, ہمیں لاسٹ انڈیکس سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, جو کہ اس کیس میں 4 ہے. سو سب سے پہلا اسٹیپ ہم i از اکول ٹو 4 انیشلائز کر دیتے ہیں, اینڈ دین ہم چاہ رہے ہیں کہ وی موو بیکورڈس, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 سے 12 جائیں, 12 سے 18 جائیں, اس 8 ہم بیکورڈز موو کریں. بٹ اگر ہم آئی پلس پلس کریں اس طرح سے تو انڈیکس انکریز ہو جائے گی, دس وڈ گو آگے, اور آگے تو کچھ ہے نہیں. سو ہم نے بیکورڈز جانا ہے, اس کے لیے ہم ڈیکریمنٹ آپریٹر یوز کرتے ہیں. ویسے ادھر ہم فارورڈ موو کرنے کے لیے انکریمنٹ کر رہے تھے. ٹو موو بیکورڈ یو یوز دا ڈیکریمنٹ آپریٹر آئی مائنس مائنس. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں, ہم نے کنڈیشن بھی لگانی ہے کہ ہم تب تک پیچھے موو کرتے جائیں جب تک انڈیکس 0 نہیں ہو جاتی, رائٹ. کیونکہ اگر انڈیکس 0 ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم ادھر پہنچ چکے ہیں, ہم ادھر انڈیکس 0 پہ پہنچ چکے ہیں, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, وی وانٹ ٹو اسٹاپ ہیئر. تو ہم اس کی کنڈیشن لگاتے ہیں جب تک آئی از گریٹر دین اور اکول ٹو 0, ٹھیک ہے. ہم نے شروع کہاں سے کی ہے, جو لاسٹ انڈیکس تھی. لاسٹ انڈیکس کیا تھی, 4 تھی, اور ہم کہاں تک گئے ہیں, فرسٹ انڈیکس تک. فرسٹ انڈیکس کیا ہے, 0. سو جب تک آئی اکول ٹو 0 نہیں ہو جاتا ہم پیچھے جاتے جائیں گے, اور جو بھی اس لوکیشن پہ, جو بھی اس انڈیکس پہ ایلیمنٹ ہوگا ہم اس کو پرنٹ کرتے جائیں گے. سب سے ضروری چیز یو وانٹ ٹو ریمبر کہ ادھر ہم ڈیکریمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وی آر موونگ ان ریورس, whereas جب ہم فارورڈ موو کرتے ہیں ہم انکریمنٹ یوز کرتے ہیں. از دس کلیئر ٹو ایوری بڈی؟ یہ جو آپ لوگ ڈاٹا اسٹرکچرز میں جاؤ گے, سب سے پہلا ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ ارے کیا ہوتا ہے, ارے کو کیسے یوز کرتے ہیں, ارے کو ریورس کیسے کرتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے, تھینکس گائز. اچھا, اف یو وانٹ ٹو ٹیک دا یوزر ان پٹ فار ارے اینڈ دین ڈسپلے ارے ایلیمنٹس, ابھی تک جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس میں ہم کوئی ارے ہوتا ہے انٹ r5, اور اس میں ہم خود ہی اپنی ویلیوز ڈال دیتے ہیں جو ہم نے ڈالنی ہوتی ہے. بٹ واٹ اف وی وانٹ ٹو ٹیک ان پٹ فرام دا یوزر, اس کے لیے بھی ہمیں ایک لوپ ڈالنی ہوتی ہے. لوپ آپ تب ڈالتے ہو جو آپ کو کسی چیز کو سیکوینس میں لے کے چلنا ہوتا ہے, جو آپ کو ارے کو ٹریورس کرنا ہوتا ہے, ارے کو سیکوینس میں ریڈ کرنا ہوتا ہے, تب آپ پرنٹ ایف کی لوپ لگا دیتے ہو. اور جب آپ نے یوزر سے ان پٹ لینی ہوتی ہے, ظاہر جب یوزر ان پٹ دے رہا ہے تو آپ نے ایک کے بعد ایک ویلیوز ڈالنی ہے نا. یہ تو نہیں کہ یوزر پہلے ادھر ان پٹ دے گا, پھر ادھر ان پٹ دے گا ارے میں, پھر ادھر. یوزر بھی ان پٹ اپنی کسی ایک سیکوینس میں دے رہا ہوگا کہ ارے 0 انڈیکس, 1 انڈیکس, 2 انڈیکس, 3 انڈیکس. سو سیکوینس مینس وی یوز اے لوپ. ادھر جو ہم لوپ لگائیں گے اس کا لاجک بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم نے پرنٹ ایف لوپ میں پڑھا ہے, جو ہم نے یہ والی لوپ پڑھی ہے. اس میں بھی ہم 0 انڈیکس سے اسٹارٹ کریں گے, ول گو اپ انٹل سائز, انٹل آئی از لیس دین سائز. ادھر سائز 5 دیا ہوا ہے, سو آئی از لیس دین 5, اور ہم انکریمنٹ کریں گے. اسکین ایف کا آپ لوگوں کو پتا ہے, پرنٹ ایف از فار آؤٹ پٹ, اسکین ایف از فار ان پٹ. اینڈ دین اوور ہیئر اس کا کیا مطلب ہے, ڈز اینی ون نو؟ کیونکہ میں نے فرسٹ سیشن میں بتایا تھا, ادھر ہم نے اینڈ کا سائن کیوں لگایا ہوا ہے؟ چیٹ میں میسج کر دو جس کو پتا ہے. یس, تھینک یو عبد الرحمان. گڈ, آپ لوگوں کو یاد ہے, گڈ, ٹھیک ہے. یس, اینڈ کا سائن مینس ایڈریس. سو اس کا مطلب ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ادھر ہمارے پاس کہ یوزر سے نمبر لو, اور اس نمبر کو ارے کے جو بھی ادھر انڈیکس گیون ہے, جو بھی ادھر آئی میں ویلیو ہے, یا 0 ہے, 1, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, جو بھی انڈیکس گیون ہے, اس ایڈریس پہ یوزر کی ان پٹ سیو کر دو. سو ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے گی لوپ کی لاجک. ان پٹ کی لاجک بھی ایسے ہی ہوتی ہے, اور آؤٹ پٹ کی لاجک بھی یہی ہوتی ہے. آپ کو فور لوپ لگانی ہوتی ہے.
ओके ये मैंने इंक्लूड किया क्योंकि आप लोगों को हैकर रैंक में इस वीक असाइन किया जाएगा. इस क्वेश्चन इज सो सिंपल, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल तरीके से, अगर आपको अरे की लॉजिक नहीं समझ आई होती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड हुए होते, यू गेट स्टक ऑन सिंपल क्वेश्चंस लाइक दीज. द क्वेश्चन इज आस्किंग प्रिंट द सम ऑफ द इंटीजर्स इन द अरे. लाइक अगर हमारे पास एक अरे गिवन है, उसमें जो भी वैल्यूज होंगी 1 2 3, उनका हमने सम फाइंड करना है. लाइक 3 + 2 + 1, प्रिंट द सम ऑफ द इंटीजर्स इन द अरे. सो इसका कोड ऐसा है, और इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगी. दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. इसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज, यहाँ हमने एक अरे बनाया है जिसका नाम नंबर्स है, और इस अरे में हमने 5 इंटीजर वैल्यूज रख दी है. फिर हमने इंट सम इज इक्वल टू 0. जो लोग सेशन दे रहे हैं उनको पता है कि हम 0 क्यों इनिशियलाइज करते हैं. इसलिए करते हैं ताकि कोई कंपाइलर कोई गार्बेज वैल्यू, कंपाइलर को एक दफा खाली वेरिएबल नजर आ जाए तो वो परेशान हो जाता है, उसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू डाल देता है. वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि कोई अनडिफाइंड बिहेवियर ना हो हमारे प्रोग्राम में. सो हम एम्प्टी वेरिएबल को, क्योंकि सम तो अभी एम्प्टी है ना, अभी तो कोई सम हमने नहीं निकाला, सो फिलहाल हम सम को एज 0 इनिशियलाइज कर देते हैं. एंड देन हम एक फॉर लूप, देखो इधर भी फॉर लूप यूज हो रहा है. आई एम टेलिंग यू फॉर लूप इज सो इम्पोर्टेंट. इधर भी हमने एक फॉर लूप लगा दिया. तो ये एक फॉर लूप है जो अरे के हर एलिमेंट को 1 by 1 एक्सेस करेगा, और उसके अंदर जो भी दी गई स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हर एलिमेंट के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट i इज इक्वल टू 0, और दोबारा वही कंडीशन लग रही है i इज लेस देन 5. अगर बाय द वे इधर साइज गिवन होता 8, तो फिर हम i इज लेस देन 8 लिखते. इट डिपेंड्स कि आपके अरे का साइज क्या है, लेकिन हमेशा कंडीशन यही होती है कि i इज लेस देन द साइज. एंड देन जो हमने अपडेट करना होता है i++ लगाने के लिए. सो इधर क्या हो रहा है कि इधर हर एलिमेंट पे जाएगा और उसको एग्जिस्टिंग सम से ऐड करेगा और उसको एक सम के वेरिएबल में सेव कर देगा. अगर हम इसका एक क्विक ट्राई रन करें, सो इधर अगर हम i की वैल्यू देखें, i की वैल्यू सबसे पहले 0 है, तो इसका मतलब है नंबर्स, मैं इधर नम लिख रही हूँ जस्ट फॉर शॉर्ट. सो इधर i की वैल्यू 0 है इस वक्त, सॉरी सम की वैल्यू 0 है इस वक्त, सम भी 0 है, और नम i इसमें 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है. सो जब हम करेंगे 10 + 0, सम में जाके क्या सेव हो जाएगा, 10 सेव हो जाएगा. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट. वी गो बैक, वी अपडेट i++ करते हैं तो i की वैल्यू अब 1 हो जाएगी. कंडीशन चेक करेंगे, इज 1 लेस देन 5, यस इट इज. तो फिर अब हम ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेंगे, और अब हम इसमें 1, इधर 20 है, राइट? क्योंकि let me just write the indexes 1 2 3 4. इंडेक्स 1 पे 20 वैल्यू पड़ी हुई है. जब हम उसका सम लेंगे इस पुराने सम के साथ, 20 + 10 30 आ जाएगा. एंड देन अगेन वी अपडेट i 2 हो जाएगा. अब जब हम नंबर्स की सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, उधर 30 पड़ा हुआ है, 30, और इधर जब हम इसको ऐड करेंगे, बेसिकली यू गाइस गेट द आइडिया, हम इसको एक एक करके ऐड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 150. साथ साथ हम i की वैल्यू अपडेट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन वैसे 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि i इज लेस देन 5 है, ये 4 पे एंड हो जाएगा, और हमारा जो सम आएगा उस वक्त वो 150 आएगा. तो फिर जो हम इस लूप को एग्जिट करेंगे, हमारे पास एक printf स्टेटमेंट होगी, सम ऑफ array elements, और इधर हम सम को प्रिंट कर देंगे. Does this make sense to you? ये सबको क्लियर है? कि आप लोगों को इस वीक असाइन भी होगा. इसके लिए बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप एक ड्राई रन करो. इनफैक्ट हमारे टीचर ने, जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ी थी, तो वी हैड प्रॉपर मार्क्स कि आपने ड्राई रन के टेबल बनाना है. 5 मार्क्स इसी में होते थे कि आपने लूप के लिए एक ड्राई रन का टेबल फुल बना के दिखाना है. So this is what we just did. हमारा आंसर भी यही आया, sum of array elements 150. Okay, it's finally time to learn about strings. Strings का ऐसा है कि strings हमने अभी तक नहीं पढ़ी, हमने int पढ़ा है, हमने float पढ़ा है, but हमने strings नहीं पढ़ी अभी तक. And strings as such is not a data type in C. हमने int का पढ़ा था, float का पढ़ा था, character का पढ़ा था. String का हमने as such नहीं किया क्योंकि string C में उसका कोई keyword नहीं होता. Strings are basically arrays of characters. So
strings are used for storing text characters. Hello world is a string of characters. हमने character याद है पढ़ा था कि जैसे H एक character है, E एक character है, L एक character है. जब हम इनको मिला देते हैं तो एक string बन जाती है और string को हम हमेशा double quotes में लिखते हैं. So characters को हम single quotes में, strings को double quotes में. Strings होती क्या है C में? Array of characters. So इधर जो हमने hello world लिखा है, so char is the data type of the array. फिर greetings is the name of the array. इधर हमें size specify करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसी line में initialize कर दिए और इधर हमने hello world की string दी है. String है तो इसलिए हमने double quotes use किए. That is how you use a string in C. So unlike many other programming languages, C में string का data type नहीं होता. आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे Python में तो आप बस string लिखते हो और string का नाम लिख देते हो और आपके पास एक string बन जाती है. C में ऐसे नहीं होता. C में string is array of characters. So you use the char type and create an array of characters to make a string. So क्योंकि मैं इधर array का word use कर रही हूँ, array जो आपने अभी तक array की properties सारी पढ़ी है ना, जो हमने सारी discussion की अभी तक arrays की, वही strings पे भी apply होगी. वही syntax, वही सब कुछ strings पे भी use होगा. क्योंकि string, like I'm saying again and again, it is an array of characters. So अगर आपने string को output करवाना, उसके लिए एक format specifier होता है %c. जैसे हमने %d पढ़ा था integers के लिए, %f पढ़ा था floats के लिए, उसी तरह से %s is used to output the string. So इधर हमने 4 data type का एक array बनाया है called greetings, उसमें हमने hello world initialize किया है. इसको जब हमने print करना होगा, हम %s का format specifier use करेंगे, तब जाके हमारे पास एक string print होगी. So %s, use the printf function together with the format specifier %s to tell C that we are now working with strings. अगर आपने एक single character print करवाना हो तो फिर आप %c ही use करोगे जैसे हम पहले use करते आ रहे हैं. और अगर आपने एक पूरी string print करवानी हो तो फिर आपने %s use करना पड़ेगा. By the way, this should be clear कि ये एक string होती है और इसके अंदर अगर हमको एक जैसे ये H है, ये character है. This should be clear to you. String, character. Okay, जैसे हमने access array का पढ़ा था, उसी तरह से हम strings को भी access कर सकते हैं. Since strings are actually arrays, you can access a string by referring to its index number inside square brackets. So बिल्कुल जैसे हमने पहले syntax पढ़ा arrays का, उसी तरह से हम string को भी कर सकते हैं. So look, again, हमारे पास hello world char type का एक array है. हमने अब ये देखो इधर हमने %c यूज किया है, not %s. %c क्यों यूज किया है? क्योंकि हम सिर्फ एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, हम पूरे स्ट्रिंग को नहीं एक्सेस कर रहे, स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं. So greetings 0, इधर 0 means first position, तो इधर h है, so इधर h का कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा. And note that we use the %c format specifier. Bilal is asking क्या array का size mention ना करने से error नहीं आएगा? No, like I said, ये शायद आप शुरू में नहीं थे lecture में, लेकिन ऐसा है कि अगर आप array को declare और initialize एक ही line में कर रहे हो, then you don't need to specify the size of the array. कर भी दो तो कोई मसला नहीं है, ना करो तो भी कोई मसला नहीं है. But अगर आप एक ही line पे कर रहे हो, there's no issue. अगर मैं इसको अलग-अलग कर रही होती like char, greetings, और मैंने इसका साइज let's say 12 सेट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं अगली लाइन में मैं जाके इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ कि इसको हेलो वर्ल्ड इनिशियलाइज करो, तो फिर मुझे इधर साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर मैं एक ही लाइन पे सब कुछ कर रही हूँ देन आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई द साइज. इट डजंट मैटर, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है. ओके, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि %c कब यूज करते हैं और %s कब यूज करते हैं. इसमें हमने %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज किया क्योंकि हम सिर्फ एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं विद इन दिस स्ट्रिंग. You can also modify strings. So बिल्कुल जैसे हमने अपडेटिंग द array की बात की थी, उसी तरह से let's say अगर मैंने इसका पहला लेटर चेंज करना हो, so I would use this syntax कि सबसे पहले मैंने array का नेम यूज किया जो कि greetings है. मैंने पोजीशन स्पेसिफाई की है 0 which means the first letter जो कि H था, और उसकी जगह मैंने ये इंस्टेड असाइन कर दिया J.
नोटिस करो कि जे एक कैरेक्टर है तो मैंने जे को सिंगल कोट्स में क्लोज किया हुआ है. याद रखना है कैरेक्टर्स यूज सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग्स यूज डबल कोट्स. और फिर मैं इधर अगली लाइन में जाके अब मैं %s यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने फुल वर्ड फुल स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है. सो %s कॉमा ग्रीटिंग्स जो कि अरे का नाम है और हमें ये फुल अपडेटेड स्ट्रिंग मिल जाएगी डेलो वर्ल्ड. You can also loop through a string, just like we studied in arrays. इसमें सिर्फ एक ही जो डिफरेंस आपने नोटिस करना है %c यूज कर रहे हैं हम इधर. इंटीजर अरेज में हम %d यूज कर रहे थे, लेकिन हम इधर क्योंकि हम स्ट्रिंग के एक एक लेटर को अलग अलग एक्सेस करेंगे, ये v होगा, फिर ओ इस तरह से हम एक एक करके अलग अलग एक्सेस करेंगे. हम पूरे स्ट्रिंग को एक साथ नहीं डाल सकते लूप में, एज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस होगा. सो इधर हम %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे एंड व्हेन दिस लूप आइटरेट्स वी गेट दिस आउटपुट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इफ यू लुक एट आवर चेकलिस्ट, ये तो सब कुछ हमने लास्ट वीक पढ़ लिया था. दिस इज डन. लूप्स हमने कल भी कवर किए, आज भी हमने नेस्टेड फॉर लूप्स का पढ़ा है. नेस्टेड फॉर लूप्स का मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को खुद ही उसका पैटर्न थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि आई और जे लूप्स कैसे काम करती हैं, बट उससे आगे दैट्स योर ओन पर्सनल प्रैक्टिस. अरेज का हमने आज डिस्कस कर लिया वेरी एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा डिटेल में, और स्ट्रिंग्स को भी डिस्कस कर लिया. सो टुमारो मैं कोशिश करूंगी कि हमारा लास्ट सेशन हो. नो प्रॉमिसेस दो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी. पॉइंटर्स, मेमोरी एड्रेसिंग, फंक्शंस एंड रिकर्जन, ये हमारे कल के टॉपिक्स होंगे. ओके, आज मैंने कोई एमसीक्यूज नहीं बनाए बाय द वे गाइस. अरेज को मुझे बनाने में बहुत टाइम लग गया था, उसकी स्लाइड्स. सो नो एमसीक्यूज फॉर टुडे. अब जिस